Hi, this is a video about Venus. This is a video about money. Uh, if there is any hack, money about money in astrology, this is a very common question. Everybody has a desire towards money, but what is a common hack to have more money? So, money is Venus. In astrology, we know money is Venus, and Venus is exalted in Piscean. It is very surprising that Venus is exalted in Piscean. Venus is debilitated in Virgo. Virgo is the sign of calculation and sign of finding out flaws and all those things. Virgo is a sign for doctors. Virgo is a sign for doctors, lawyers, and editors and all these things. So the people who has the work of finding out flaws, that is Virgo. And what is Piscean? Piscean is Bindas. Piscean does not have worry about anything. They are like less disciplined. Whatever they want to do, they do. They don't worry about money, but it is always said that Piscean is the most richest sign. Okay, because this is the last sign. Richest signs might not mean about having maximum amount of money, but it might mean about having really good amount of money, although they don't mean to acquire money and all those things. But Piscean is about money. So why how to use any simple remedy to have more money? That is because Venus, which is symbol of money, is exalted in Piscean sign, and Piscean is a sign for moksha. Piscean is a sign of philanthropy and dhyan, meditation and all. So the hack of having money quickly, number one, is meditation. Do meditate every day. मिनिमम टाइम इज़ फॉर 15 मिनट्स. 5 मिनट्स का कोई मेडिटेशन नहीं होता है. एक्चुअली 15 मिनट्स का मेडिटेशन भी उतना इम्पैक्ट नहीं होता है. Actually, one should do at least half an hour meditation, but even if you cannot do 15 minutes of Om chanting, you can do. Meditation does not mean sitting at one place and thinking about Krishna, thinking about God, thinking about myself, thinking about this third eye. All these are not meditation. There are more than 100 methods of meditation. If you sit at a place and think about Krishna, think about third eye, and you meditate, you are able to concentrate. Meditation is not concentration. Meditation is connection. Okay? If you are able to connect properly with God, that is the meditation. So think only sitting at one place, it will never help you to connect with God, because if we can connect with God by sitting at one place for 15 minutes and thinking about God, then तो हम सबको मोक्ष मिल गया होता. आँख बंद करे, कृष्णा मुझे ये चाहिए, और कृष्णा आके देखे जाते हैं, तब तो मोक्ष सबको मिल गया होता. और मोक्ष अगर मिल गया होता तो हम तो पैदा ही नहीं होते. वी आर देयर इन दिस ऑन दिस अर्थ मीन्स हमें मोक्ष नहीं मिला तभी तो हम अर्थ में हैं. हमें मोक्ष नहीं मिला, उसका मतलब वी कैन नॉट कनेक्ट क्विकली भगवान के साथ. कन्वर्सेशन एंड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ जैसा कन्वर्सेशन होता है, वैसा कन्वर्सेशन जब भगवान के साथ होगा तो हमें मोक्ष ही मिल जाएगा. सो मोक्ष तो हमें मिला नहीं है, एंड एक जगह बैठ के भगवान के बारे में सोचने से किसी को भगवान से कनेक्शन नहीं हो पाता. सो देयर आर मोर देन 100 मेथड्स ऑफ मेडिटेशन. कहीं से भी आप कहीं से भी कुछ भी डाउनलोड करके यू कैन ट्राई फॉर 3 days. अगर आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, अच्छा फील हो, देन यू कैन कंटिन्यू फॉर 3 months. I also do teach meditation online, but if you don't learn from anybody, only you can do 15 minutes of Om chanting. Om chanting, the sound of Om is actually the same sound of rotation, of revolution of all the like planets and etc. So with the same sound, even the molecules and the atoms move around the molecule. And you may ask that how do you know? I don't have TV from last 6 years, I think. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Yes. More than 6 years I don't have TV. And
when I had TV, it was my addiction. My addiction was National Geographic and Discovery. So I watched so many programs about these matters also. So it is there that scientific experimentation to record the sound of moving of molecule, atom, etc., and the sound of moving of any revolution, rotation of any like planets and all. And Om is actually same. That is the reason when you do Om chanting just for 15 minutes, you get connected with the vibration of all the rotation, revolution of all the planets and all, and oneness. This is called oneness. And when you get attuned with all these things, then what happens? You get some messages from Uparwala. How funny, na? How interesting. You get some messages directly from Uparwala. Don't do this kind of messages you get from Uparwala. It is not that clear, but whatever. So for money, meditate, because money means Venus is exalted in Piscean. So money is debilitated in Virgo. Virgo is the sign of calculation and flaws निकालना. So आप क्यों कम इनकम कर रहे हो, इसके बारे में, क्यों मेरा इनकम इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसके बारे में आप जितना कैलकुलेट करोगे उतना कम पैसा आपके पास आएगा. सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, बट एस्ट्रोलॉजिकली दैट इज़ ट्रू. आप जितना कैलकुलेट करोगे, जितना आपका इनकम करने का मेथड, आपका जॉब या आपका वॉट एवर इनकम, उसके बारे में आप जितना कैलकुलेट करोगे, जितना फ्लॉस निकालोगे, उतना ही आपका इनकम कम होगा. इट माइट बी स्ट्रेंज, बट इनकम आपका ज़्यादा तभी होगा कब? व्हेन यू meditate, because that is a sign of meditation, that is a sign of moksha. तो मोक्ष तो मेडिटेशन करते करते ही मिलेगा ग्रेजुअली. नंबर 2, Venus is exalted here in Piscean. Piscean is the biggest and last sign of philanthropy. So do philanthropy. तो तुम बोलोगे मैं तो 2 रुपया कमा के क्या 4 रुपया दान कर दूँ? नहीं नहीं. philanthropy is a thought. philanthropy आपका एक थॉट है, देने की इच्छा. मुझे और पैसा मिलेगा अगर मैं दूं, ये सोच के देने से नहीं मिलेगा आपको पैसा, बट देने की इच्छा. देने की इच्छा का मतलब ये नहीं कि आप 2 कमा के 4 दान कर दे रहे हो, उसके बाद खुद के खाने के पैसे नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ. बट देने की इच्छा का मतलब ये है कि ट्रैफिक में आपका गाड़ी रुका हुआ है, सामने एक भिखारी, उसके पास बिल्कुल फटे कपड़े हैं, आपको मन किया कि 5 रुपीज़ का कॉइन दे देते हैं, एक 10 रुपीज़ का कॉइन दे देते हैं, जबकि देने का मन भी करता है तो लगता है कि 1 रुपी देंगे. ऐसा नहीं. मतलब इफ़ यू आर अर्निंग, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अर्निंग 25,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ, तो आप एवरीडे ना भी हो, लेकिन वीकली 3 बार 4 बार आप 10 रुपया 5 रुपये तो आराम से दे सकते हो. एवरीडे भी आप दे सकते हो. एवरीडे अगर आप एक भिखारी को 10 रुपया देते हो, मतलब दिस इज़ नॉट अ फॉर्मूला कि इफ़ यू गिव 10 rupees to a beggar every day you will earn a lot of money. No, that it is not a formula, but it's a kind of mentality. If you see someone with फटा हुआ कपड़ा, someone जिसके पास खाना नहीं है, बहुत बूढ़े हैं, लाचार हैं, वो अपने आप वो मन करना चाहिए. इफ़ यू आर डूइंग फिलान्थ्रॉपी, अब जितना फिलान्थ्रॉपी करोगे आपका पैसा उतना इंक्रीज़ होगा. लेकिन अगर आप ये सोच के करोगे कि मैं देने से मेरा पैसा अभी वापस क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा करने से नहीं होगा. बट दिस इज़ ईजीएस्ट वे. एक है मेडिटेशन एंड सेकंड है फिलान्थ्रॉपी, अ मेंटालिटी टू गिव. आप किसी को क्या दे सकते हो, ठीक है. नंबर 2 पाइसियन का ये कैरेक्टर हो गया. नंबर 3 पाइसियन का कैरेक्टर क्या है? Piscean are very strange. They are happy all the time. कुछ भी हो रहा है, they are happy. They live in a different kind of like plane. जहाँ बहुत बड़ा दुखद इंसिडेंट होने से भी शायद वो नॉर्मल बिहेव करेंगे, इस टाइप का. तो उस टाइप का ऑलवेज हैप्पी, नॉट वेरी कैलकुलेटिंग, नॉट कैलकुलेटिंग एट ऑल. खुश रहना, दूसरों को हेल्प करने की कोशिश करना. A Piscean person जिसका Piscean sign strong है, if you are a Piscean ascendant, Piscean moon, if you have Atmakaraka in Piscean, if you have a big conjunction in Piscean, definitely you will
ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स। अगर आप दूसरों को हेल्प करने की कोशिश करते हो, जैसे खुद कुछ काम कर रहे हो और दूसरे को अगर हेल्प कर दोगे तो उसका काम भी जल्दी हो जाएगा। तो प्लीज़ हेल्प करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्प नहीं लोगे, खुद भी लो, दूसरों को हेल्प भी करो। हमेशा कोशिश करो कि ज़्यादा हम हेल्प करें, जितना हम हेल्प ले रहे हैं उससे ज़्यादा हम हेल्प करें। क्यों? दैट इज़ ऑल्सो आ मेथड ऑफ इंक्रीजिंग मनी। सुनने से अजीब लग रहा है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैंने 3 जन को हेल्प किया है इसीलिए माई सैलरी विल बिकम 3 टाइम्स, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये करके देखो आप प्रैक्टिस, हेल्प अदर्स। मतलब आई हैव सीन अ बंच ऑफ फ्रेंड्स, लाइक 5 फ्रेंड्स 6 फ्रेंड्स, ऐसे उनमें से एक सबको हेल्प करता है, 1-2 फ्रेंड्स जो हैं वो सबको हेल्प करते हैं, और दूसरे जो हैं हेल्प लेते हैं बट हेल्प करना नहीं चाहते हैं। मतलब कोई एक फ्रेंड फंस गया है, सोचो उसका बाइक ख़राब हो गया है, रास्ते में फंसा हुआ है, पानी बरस रहा है, तुम्हारे घर से 50 मिनट्स का डिस्टेंस है। इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि अच्छा मैं आ रहा हूँ, तो मतलब एक सूखा कपड़ा ले जाना, एक रेनकोट, एक छाता ले जाना, उसका बाइक को धकेल के दोनों मिल के, मतलब कोई मतलब आसपास में कोई रिपेयरिंग शॉप है तो वहाँ तक पहुँचा दिए, फ्रेंड के साथ थोड़ा खड़े होके चाय पी लिए। मतलब इसमें बहुत बड़ा दान वाली तो कोई बात नहीं है। आपके घर के पास ही किसी फ्रेंड का बाइक अगर ख़राब हो गया है, उसके पास आप छाता लेके चले गए, उसको 10-15 मिनट उसके साथ आधा घंटा स्पेंड किए, जब तक गाड़ी बन गई। अगर आपका कोई ज़रूरी काम नहीं है, ऐसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम देने जाना है और आप वो छोड़ के आप जा रहे हो फ्रेंड को हेल्प करने, आप जितना मदद करोगे। आई हैव सीन माई सन जो कि एग्ज़ाम देने जा रहा है, लेकिन एक गाय का एक्सीडेंट हुआ और पैर टूट गया, हड्डी, बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। और मैंने उससे पूछा, वो बोला कि हम जो इंजर्ड काऊ को पिकअप करते हैं उनका फ़ोन नंबर हमारे पास था, तो हम कॉल करते हैं, हमें 15 मिनट लेट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम टीचर को एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। लेकिन ये गाय का जितना एक्सीडेंट हुआ है, जितना खून बह रहा है, उसको थोड़ा हेल्प करना चाहिए, क्योंकि हम गाय का दूध पीते हैं, जबकि गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए होता है, फिर भी हम तो पीते ही हैं, हम तो हैबिचुएटेड हो जाते हैं और गाय को माँ बना दिए। माँ बनाने से कुछ नहीं होता है। डू यू लव योर मदर? मैक्सिमम लोगों को तो ये होता है, खुद अच्छा जॉब अब मिल जाता है तो खुद के माँ को ही खुद के पास रखने में शर्मिंदगी होती है कि गंवार है, पता नहीं ऐसे है वैसे है वैसे है। तो माँ का बात तो आप छोड़ दीजिए, आप गाय को, मतलब इसी गाय का दूध हम पिए थे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके पास जो मदर डेयरी के पैकेट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, किस गाय का, ये तो आपको नहीं पता। लेकिन दुनिया का हर गाय को आप माँ जैसा बिहेव करते हो क्या? दुनिया का हर गाय के लिए, दुनिया का हर गाय को आप घर में लेके चले आते हो क्या? खिलाते पिलाते रहते हो? नहीं। तो गौ माता फिर एक्टिंग करने का ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू ड्रिंक मिल्क ऑफ काउज, देन एक गाय का कुछ हुआ है, आपको मदद करना चाहिए। लेक्चर देना नहीं कि वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, आपको करना चाहिए। कौन क्या नहीं कर रहे वो थॉट ही दिमाग से निकाल दो, दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं है। उसने गलत क्यों किया, निकाल दो ना दिमाग से। आपने नहीं किया ना गलत, अगर आप किए हो गलत तो खुद को सुधारो। ठीक, तो मेडिटेशन करना, फिलांथ्रोपी, चाहे वो आप भिखारी को भीख दे रहे हो, जो भी नीडी जो है, या कोई स्टूडेंट है जिसके पास फीस भरने का पैसा नहीं है, उसको थोड़ा मदद कर दिए। सो इट कैन बी एनी वन एनी टाइम, किसी भी टाइप का ये सब हेल्प अगर आप करते हो, सुनने में अजीब लगे चाहे ना लगे, अगर आप ऐसा हेल्प कर रहे हो तो आपका मनी इंक्रीज़ होगा। पाइसियन लास्ट साइन है, बूढ़ा सा बेचारा है, बहुत फास्ट आपको रिजल्ट नहीं देगा कि आज आप फिलंथ्रोपी किया कल ही आपके पास छत से पैसे आने लगे, ऐसा नहीं है। बट पाइसियन में वेनस एक्सल्टेड है, एंड पाइसियन इज अ साइन ऑफ फिलंथ्रोपी, मेडिटेशन, हीलिंग, मोक्ष, दान, व्हाटएवर, ऑल दीज थिंग्स जो भी पाइसियन है। एंड सिंग, डांस, व्हेनेवर यू वर्क, सिंग, डांस, मूड ऑफ हो वो चला जाएगा। सिंग डांस का क्या मतलब? खाना पकाते हो आप, गाते हुए खाना नहीं पका सकते हो क्या? झाड़ू पोछा करते हो आप, थोड़ा सा डांस नहीं कर सकते हो क्या? गलत है क्या? झाड़ू पोछा करते हुए थोड़ा डांस कर लेना, खाना पकाते हुए थोड़ा सा गाना गाना गलत है? नहीं है ना, तो क्यों नहीं करते हो? दैट विल इंक्रीज मनी। स्टे हैप्पी ऑलवेज, दैट विल इंक्रीज मनी। इसका कोई स्टैम्प पेपर में सिग्नेचर नहीं है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग वेनस इज एक्सल्टेड इन पाइसियन। ओके, तो सिंग, डांस, ये सब आप ऐसे ही कर सकते हो, खुश आप ऐसे ही रह सकते हो। कुत्ता, बिल्ली, भेड़, भिखारी,
नौकरानी, सबको आप ऐसे ही दे सकते हो। अदरक वाली चाय, बाय, अदरक वाली चाय पियो, मैं भी पी रही हूँ, तुम भी पियो। ऐसा नहीं कि उसको बासी एक रोटी पकड़ा दिए। ओके, बासी रोटी आप कुत्तों के लिए रखो ना। ओके, बाय। I think you have understood how to increase your money. So, good luck.